Hello everyone, this is Ankit Gupta. Welcome back in Geographic Trench. So in the revision videos, today we will discuss the some definitions of the chapter Soil of India. The first is definition of the soil. What do you mean by soil? The soil is a thin layer of loose mixture of small rock particles and decomposed organic matter. ओके, स्मॉक रॉक पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी वेदरिंग होती है, मीन्स ब्रेक डाउन होते हैं, और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर का जो मिक्सचर होता है दैट इज नोन एज द सॉइल which covers the most of the part of the land surface. Okay, so this is the definition of the soil. Next one is the soil erosion. Soil erosion is important phenomena. What do you mean by soil erosion? The removal of the top layer of the soil by human activities, by the force of nature such as wind, water. Yeah, we can say in a simple manner, the removal of the uppermost layer of the soil is known as the soil erosion. अब जो सॉइल इरोजन होता है उसके बहुत सारे कॉजेज़ भी होते हैं. अब कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन होता है. डिफॉरेस्टेशन, ओके. देन आफ्टर दैट बैड फार्मिंग टेक्निक से होता है. बैड फार्मिंग टेक्निक्स एज वेल एज बाय द शिफ्टिंग कल्टिवेशन. शिफ्टिंग कल्टिवेशन से होता है. overgrazing. So these are the major causes of the soil erosion. Next topic is the in situ soil. What do you mean by in situ soil? The soil which are formed where their parent rocks are found. मीन्स वो सॉयल जिसकी पेरेंट रॉक वहीं पे पाई जाती है जहाँ पर उस सॉयल का फॉर्मेशन होता है. दैट टाइप ऑफ सॉयल इज नोन एज द इन सिटू सॉयल. Okay, means they are formed in the original position of by the breaking of parent rock. Example, black soil. Black soil is found in the region where the igneous rocks are found, where the weathering of igneous rocks occur. Red soil is also in situ soil, which is formed by the weathering of the ancient crystalline and metamorphic rock, as well as laterite soil is also in situ soil. All right. Next, ex situ soil. एक्स सिटू सॉइल आर नोन एज द ट्रांसपोर्टेड सॉइल. जो सॉइल वहाँ पे फॉर्म नहीं होती जहाँ पर उसकी पेरेंट रॉक पाई जाती है, ऐसी रॉक्स एक्स सिटू होती हैं. ठीक है ना. वेरियस एजेंट ऑफ इरोजन लाइक सेडिमेंट्स कैरिड आउट एंड दे डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स एंड विंड. ये नदियों, वाटर बॉडी के द्वारा और हवाओं के द्वारा बहा कर लाए जाने वाले जो सेडिमेंट्स हैं उनके डिपोजिशन से फॉर्मेशन होने वाली जो सॉइल है दैट इज नोन एज द ex situ soil, as well as transported soil also. Example, alluvial soil. I have told you in the earlier videos that alluvial soil is formed by the weathering of alluvial soil is formed by the deposition of the sediments brought down by the rivers. Next, petrology. Petrology means the study of soil. Yeah, scientific study of soil is known as the pedology. नेक्स्ट, शीट इरोजन. शीट इरोजन इज अ टाइप ऑफ इरोजन. ये एक टाइप का इरोजन होता है जो वाटर के द्वारा होता है. सॉइल इरोजन होता है जो वाटर के द्वारा होता है. इट इज कॉज्ड बाय द रनिंग वाटर व्हेन अ थिन लेयर ऑफ सॉइल ऑन द सरफेस इज रिमूव्ड ओवर अ लार्ज एरिया. जब एक सॉइल लेयर के रूप में, पूरी एक लेयर बनी हुई होती है, उस लेयर के रूप में रनिंग वाटर के द्वारा बह जाती है, रिमूव हो जाती है, दैट टाइप ऑफ इरोजन इज नोन एज द शीट इरोजन. In this type of erosion, a sheet of soil is eroded. That's why it is known as the sheet erosion. Next is the rill erosion. What is rill erosion? When sheet erosion continuous, जब लगातार sheet erosion होता रहता है for a long time, the silt laden runoff, silt contain carry करते हुए जो runoff move करता रहता है, many finger shaped rills, बहुत सारी finger shaped rills बन जाती हैं over a large area. एक बड़े से एरिया में फिंगर शेप्ड इस तरह से रिल्स बन जाती हैं, बहुत बड़े बड़े रिल्स बन जाते हैं उन लैंड फॉर्म्स में. तो इस टाइप का जब सॉइल का इरोजन होता है दैट इज नोन एज द रिल इरोजन. नेक्स्ट इज गली इरोजन. गली इरोजन टेक्स प्लेस व्हेन रनिंग वाटर कट्स डीप सॉइल. एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन की एब्सेंस की वजह से जब बहुत बड़ी बड़ी गली बन जाती है, गली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिनको रनिंग वाटर जो है वो आपका एक बड़े से डीप कट कर देता है सॉइल में, दैट टाइप ऑफ इरोजन इज नोन एज द गली इरोजन. इससे क्या होता है, गली इरोजन रिमूव्स न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे रिमूव हो जाते हैं एंड मेकिंग द सॉइल अनप्रोडक्टिव। इससे सॉइल क्या हो जाती है, अनप्रोडक्टिव हो जाती है। एंड मेनली इट इज़ फाउंड इन द चंबल वैली रीजन। चंबल वैली रीजन में इस टाइप का इरोजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड भी एक टाइप का सॉइल इरोजन है जो आपका वाटर के द्वारा होता है। लैंडस्लाइड क्या होता है, इट इज़ अ सडन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड। तब सडन डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए किसी भी लार्ज बड़े से लैंड मास का सडन मूवमेंट हो जाए, मतलब सडन वो गिर जाए, बिल्कुल एकदम से स्लाइड हो जाए, तो दैट टाइप ऑफ इरोजन इज नोन एज लैंडस्लाइड। और ये मेनली कहाँ होता है, हिली रीजन्स पे पाया जाता है। एट वेल एज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लिप इरोजन। इसको क्या कहते हैं, स्लिप इरोजन भी कहते हैं, क्योंकि जो लैंड मास हो जाता है वो स्लिप हो जाता है। विंड इरोजन, अब सेकेंड मेजर टाइप ऑफ इरोजन है विंड। तो विंड इरोजन क्या है कि जो विंड के द्वारा सॉइल का इरोजन होता है, दैट इज नोन एज द विंड इरोजन। अंडर दिस टॉप फर्टाइल सॉइल ब्लोज अवे। जब स्पीड ऑफ विंड्स आती हैं तो जो टॉप फर्टाइल सॉइल होती है वो ब्लो अवे हो जाती है बाय द स्पीड ऑफ द विंड। तो दैट टाइप ऑफ इरोजन इज नोन एज द विंड इरोजन। और इस टाइप का इरोजन जो है वो एरिड रीजन्स जो होते हैं, एरिड और सेमी एरिड रीजन्स, उन रीजन्स में इस टाइप का जो इरोजन है वो देखने को मिलता है। इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, एफॉरेस्टेशन करके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगा के, या शेल्टर बेल्ट्स बना के वी कैन रिड्यूस द सॉइल इरोजन इन द ड्राई रीजन्स वेयर द विंड इरोजन अकर। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन एक कॉज आपको बताया था होता है जिससे सॉइल इरोजन होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, पेड़ों को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इट एक्सपोजेस द सॉइल टू वाटर एंड विंड विच लीड्स टू सॉइल इरोजन। ऑलराइट, नेक्स्ट, ह्यूमस क्या होता है, सॉइल में प्रेजेंट डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज फॉर्म में होता है सॉइल में, ठीक है ना। और डिकम्पोजिशन किसका होता है, प्लांट्स है, डेड एनिमल्स हैं, इनका जो डिकम्पोजिशन होता है, उनके डिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो जब सॉइल में प्रेजेंट होते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। जिस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है, दैट सॉइल इज़ अ फर्टाइल सॉइल। नेक्स्ट इज द सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या है, सॉइल कंजर्वेशन एक टेक्निक है, एक मेथडोलॉजी है बाय विच वी कैन प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। हम सॉइल को सॉइल इरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं एंड एज वेल एज वी कैन मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी बाय यूजिंग डिफरेंट मेथडोलॉजी। कई सारी मेथडोलॉजी का यूज़ करके सॉइल के इरोजन को रोकना एज वेल एज सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना, that technology is known as the soil conservation. How can we do the soil conservation? We can do by terrace farming, means hilly structure areas में step like farming करना, इस तरह से step like farming करना। एफॉरेस्टेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगा देना। शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स का मतलब होता है जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके चारों ओर पेड़ों को लगा देना। जब चारों ओर पेड़ों को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक शेल्टर प्रोवाइड करेगा और वो एग्रीकल्चरल लैंड या जो भी लैंड मास है उससे इरोजन नहीं होगा। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है इन अ सिंगल लैंड, एक लैंड में एक साल के अंदर कई सारी क्रॉप्स को ग्रो करना। लाइक हमने एक टाइम पीरियड पे हमने राइस ग्रो किया, फिर एक टाइम पीरियड पे वीट ग्रो किया, फिर एक टाइम पीरियड पे वाटरमेलन या पल्सेस ग्रो किया। तो इस तरह से क्रॉप का क्या होता रहता है, रोटेशन चलता रहता है। ये करने से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और सॉइल का इरोजन कम से कम होता है। एज वेल एज कंटूर प्लोइंग, जो हिली एरियाज़ में स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है। तो दीज आर द मेजर मैथड्स बाय विच वी कैन डू द सॉइल कंजर्वेशन। नेक्स्ट, टेरेस फार्मिंग को डिटेल में डिस्कस किया गया है कि इट इज़ अ मैथड ऑफ फार्मिंग विच इज़ डन ऑन द स्टेप लाइक स्ट्रक्चर। पहाड़ों पे स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, फार्मिंग की जाती है, विच इज़ क्रिएटेड ऑन द हिली स्लोप्स एरिया। और ये क्या करता है, सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर देता है। कंटूर प्लोइंग, इट इज़ ऑल्सो फार्मिंग टेक्निक यूज इन हिली एरियाज। इसमें क्या होता है, जो प्लोइंग की जाती है वो आउटलाइन ऑफ द फील्ड इन सर्कुलर मैनर। मान लीजिए ये अगर हिली एरिया है तो प्लोइंग जो की जा रही है सर्कुलर मैनर में, इक्वल हाइट पे आपकी प्लोइंग की जा रही है, खेत की जुताई की जा रही है, तो इट इज़ नोन एज द कंटूर प्लोइंग। शेल्टर बेल्ट्स, फार्मर क्या करते हैं, एक सेवरल रो में एग्रीकल्चर लैंड के सेवरल रो में क्या करते हैं, पेड़ों को लगा देते हैं।
तो ये क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, ये एक बेल्ट बनी हुई है, उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे भी सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है. So these are the some major terminologies as well as the definitions. All right. Thank you so much. We will discuss further topics in the next class. Thank you so much.